کامیابی کی راہ کو طے کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے اس پروگرام میں کرنے والے اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے الحمدللہ دونوں ہی باخلوص ہیں۔ آج کی اس عظیم شان اجلاس کا صدارت کا صحرا اس عظیم شخصیت کے سر باندھا جا رہا ہے جن کو آپ اور ہم جناب حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تمام ہی کارکنان فیض ہرا سے امید قبی کرتا ہوں کہ اس کی پرزور تائید فرمائیں گے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے عامتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک اہم عبادت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت رکھی گئی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، تمام انسانیت کو ایک پیغام اور ایک میسیج دے دیا، جس کے اندر یہ بات بتلا دی گئی کہ یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ کلچر جو اللہ رب العزت اس قرآن حکیم کے ساتھ بھیج رہا ہے، اس کو غالب آ جانا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن حکیم کن لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں یہ قرآن حکیم ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے، چرندوں اور درندوں اور پرندوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے جو تہذیب اس قرآن حکیم کے ساتھ آئی ہے، یہ تہذیب انہی لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، اس کا انہی لوگوں کے اوپر لاگو ہوگی، نافذ ہوگی جن کے لیے قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ مقام مصطفیٰ کا سبھی انبیاء سے سبھی انبیاء سے اعلیٰ ہے مقام مصطفیٰ کا، سبھی انبیاء سے اعلیٰ ہے مقام مصطفیٰ کا، جو خدا کے بعد آئے، جو خدا کے بعد آئے، وہ ہے نام مصطفیٰ کا۔ میرے نبی کی بات نہ پوچھو، شان میں سب سے اعلیٰ ہے، شان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ عرش پہ جس کو رب نے بلایا، میرا کملی والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرح حاصل کیا، جس کا مطلب وہ مفہوم یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا۔ بہت ہی مختصر وقت میں اسی آیت اور اسی حدیث مبارکہ کی ضمن میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم سب لوگ اس دینی محفل میں اور اس دینی مجلس میں شامل ہوئے ہیں۔
अल्लाह हमारे यहाँ आने को, बैठने को और जो कुछ कहा जाएगा, सुना जाएगा, उन सब को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह का एहसान तो ये है कि अल्लाह ने हम सबको उस उम्मत में पैदा फरमाया है कि जो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उस उम्मत में हमें पैदा फरमाया है कि जो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। एक दूसरा एहसान हम सब के ऊपर अल्लाह का ये है कि इस उम्मत में जो सारी उम्मतों की सरदार है, अल्लाह ने हमें पैदा किया और इस उम्मत में 18,000 मखलूक़ात हैं। उन 18,000 मखलूक़ात में से जो सारी मखलूक़ों की सरदार और सबसे अफजल मखलूक है वो इंसान है। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि हमें इंसान बनाया, कोई हैवान नहीं बनाया, कोई चरिंदा दरिंदा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाया जो सारी मखलूकात की सरदार है। तीसरा एक एहसान अल्लाह तबारक व तआला का खास ये है कि इंसानों में भी अल्लाह ने हमें ईमान वाला और इस्लाम वाला बनाया, ऐसे मजहब के साथ जोड़ा है जो मजहब समावी है, अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। ऐसे मजहब के साथ जोड़ देना और हमारा उसको कबूल कर लेना, ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला इन एहसानात का हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। देखो चलो चलो भाई, तीसरा बस उधर को देखो, लो पकड़ो, आप उधर हट जाओ, सामने लो कारी साहब। हाँ चलो लो भाई, एक एक पकड़ो, लाइन से आओ, एक एक आदमी लाइन से करिए। माशाअल्लाह, लो जी, माशाअल्लाह, लो भाई, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से, पुराने करिए, दोनों हाथ से पकड़ो, माशाअल्लाह। लाइए, कितने बच्चे? बैठ करो, 14 बच्चे, माशाअल्लाह। लो बेटा जी। अल्लाह ताला आप हजरात के आने को, बैठने को, जो बातें कही गई हैं उनको याद रखकर उन पर अमल करने को अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए और हम सब का यहाँ आना बैठना बेहद अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कुरान पे शायरी सुनाना चाहता हूँ। अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंसूर बना दिया। हज़रत आज के दौर में जो आज यहाँ आपने बयान करा है, यकीनन वो बहुत अच्छा बयान करा है कि आपने बयान में फरमाया है कि वालिदैन और बच्चों के जो हकूक हैं वो नजरअंदाज हो रहा है समाज में। तो वालिदैन अपने बच्चों को रात दिन मोबाइल दे रहे हैं, उनके आपको क्या कहना है? वो वालिदैन अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपनी आइंदा की जो मुस्तकबिल की जिंदगी है उसको बहुत खराब कर रहे हैं। अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाना चाहिए और दीनी तालीम में खास तौर पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि दीन ही तालीम ही ऐसी नाजायज और हराम मौत से इंसान को बचाती है। एक आखिरी बात के, एक माशाल्लाह इस पाक जमीन में एक मदरसे की जो मदरसा है तामीर हो रहा है, आप आवाम से, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी न्यूज है, DN न्यूज है, तमाम चैनल मौजूद है, लाखों लोग हमें देखते हैं, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आवाम से इस मदरसे को चंदा देने के हवाले से? मैं ये सब हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जहाँ हम अपने घरों की, अपनी बैठकों की, ऑफिसों की और फैक्ट्रियों की, कारखानों की तामीर करते हैं, हम अपने मदरसे की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसलिए कि एक मदरसे की तामीर खालिस एक दरसगाह या कमरे की तामीर नहीं है,
बल्कि पूरे इस्लामी मुआशरे की शरीयत और सुन्नत में रहकर पूरे मुआशरे की तामीर है, इसलिए हर आदमी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हमारे जो बच्चे हैं वो YouTube से जो है दीन की तालीम ले रहा है, जबकि उसमें ज्यादातर मौलाना ऐसे हैं जो नाअहल है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे मस्जिदों से और हमारे मदरसे से दूर हो रहा है? इसकी क्या वजह है? यूट्यूब से इसलिए कि बच्चों को मालूम नहीं होता कि ये बात सही है या गलत है, इसलिए यूट्यूब पर बातों को देखकर अमल नहीं करना चाहिए। और बच्चों को तो खुसूसन बालिग होने से पहले तो यूट्यूब वगैरह से, मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए। ये बहुत उनकी जिंदगी को खराब करने वाली चीज है, नजरों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये ऐसा नहीं लगता कि आज जो हमारा मदरसा है उसके अंदर आज जो दीनी तालीम दी जा रही है तो उसको डिजिटल कराया जा रहा है? ये तो तालीम डिजिटल, जब से ये तालीम आई है इस दुनिया में अब तक भी और आइंदा तक भी डिजिटल ही है। हम लोग नहीं समझते कि डिजिटल है। तो आप उसको अपने अल्फाज में किस तरह बयान करेंगे ताकि लोग उसको समझें? ये जितनी तालीम दुनिया में हम देख रहे हैं वो सब इसी दीनी तालीम से निकल रही है और इसी दीनी तालीम के जरिए से ही परवान चढ़ रही है। हमने उसको डिजिटल नहीं समझा, उसको ही समझना चाहिए। उसी के जरिए से अंग्रेजी, हिंदी, साइंस सब कुरान के अंदर से निकली होगी। जो यहाँ की माशाल्लाह जो आवाम आपको दिख रही है, हमारे जो चैनल के माध्यम से क्या उनको जो अपील करना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया, मैं ये सबसे अपील करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने तमाम बच्चों को अपने मदारिस के अंदर भेजकर दीनी तालीम जरूर दिलाएं और दुनियावी तालीम में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसी से हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे। एक छोटा सा मकतब है यहाँ पे और इसके ऊपर काफी कर्ज भी है। मैं सब लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इलाके के और दूर दराज के सभी लोग अपने इस मदरसे का और सभी मदारिस का ताउन करें। इसके ऊपर जो बार कोड लगेगा, हर आदमी कुछ न कुछ, चाहे 100 रुपये से ही हर आदमी इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करे। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं मुल्ला कॉलोनी खड़ौली दिल्ली में। यहाँ एक अच्छी बात ये हो रही है, एक मदरसा, देखिए यूनिवर्सल न्यूज हम पहले बताते हैं अवाम का चैनल है, जॉबें कहाँ मिलती है, सस्ते इलाज कहाँ पे है, अवेयरनेस के प्रोग्राम हम चलाते हैं। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद में 3 बच्चियों जो मुसलसल मोबाइल में मुख्तलिफ गेम खेलती थी, आत्महत्या कर ली है। इसी के मद्देनजर देखते हुए जो मदारिस है वो अलर्ट हो गए हैं, माँ बाप अलर्ट हुए हैं। और हम जिस मदरसे की बात कर रहे हैं, फैज़ हीरा मदरसे का नाम है। मोहम्मद मासिन साहब, ये जो रूहानी प्रोग्राम हुआ, आपको पहली बार बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मैसेज यही है कि माँ बाप जैसे कि अपने काम पर ध्यान देते, हर चीज पे ध्यान देते, तो सबसे पहले बच्चों को अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब माँ बाप ये है कि मदरसों पे, स्कूलों पे, ट्यूशन पे छोड़ देते, ऐसा नहीं। बच्चों को अपने बच्चों को खुद आप टाइम दो ताकि आपका बच्चा आपकी नजर में रहे और अच्छी तरबियत हासिल करे। मेरा यही मैसेज। और हमारे मदरसे में माशाल्लाह 350 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें हिफ्ज़ नाज़रा दोनों तालीम हासिल करते हैं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि जो भी आपसे हो मदरसे के लिए ताउन करे और करवाए। आप इस बार कोड पे ताउन कर सकते हैं, इस पे डालेगा आपका नाम, मदरसा फैज़ हीरा नाम आएगा लिखा हुआ। आप सभी आज़ाद से दरख्वास्त है कि आइए और मदरसे को मुआयना करें और फिर मुआयना करके फिर जो भी हो आपसे हो सके ताउन करें। अब मेरे साथ जुड़ रहा है मोहम्मद रेहान। ये मदरसा फैज़ हीरा पहले मकतब की शक्ल में था, अब इसने मदरसे का रूप लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में, इस मोबाइल और इंटरनेट और गेम के जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र यह है कि बच्चे अपनी खुशी के साथ में और वालिदैन की ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे के साथ में इस पुरफितन माहौल में भी 250 से 350 बच्चे इस मदरसे में पढ़ने आते हैं। इस पुरफितन माहौल में वो अपने गेम को, मोबाइल को छोड़कर शौक के साथ मदरसे में आते हैं और मदरसे में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और इस पर जो है वालिदैन को मुबारकबाद भी दी जाती है और वालिदैन से गुजारिश भी की जाती है कि जिस तरह आप अपने तमाम काम पर फोकस करते हैं, इस तरह आप उखरवी तालीम पर भी फोकस करें, जिस तरह दुनियावी तालीम पर फोकस है। अब्दुल मन्नान मेरे साथ जुड़ रहा है, जो खुद एक मदरसा चाहते। ये एक मुल्ला कॉलोनी है दिल्ली के अंदर और यहाँ पे एक इदारा भी है, मदरसा भी है। माशाअल्लाह से इस मदरसे को मैं आज से नहीं कई साल से जानता हूँ और हजरत मोहसिन साहब को भी, मौलाना मोहसिन साहब जो हैं
ان کو بھی کافی دن سے جانتا ہوں. جب یہ مدرسہ کیا ایک چھوٹا سا 2 4 5 بچے ہی اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے. اس مدرسے کو میں جب سے جانتا ہوں. آج آپ کی قوم، آپ کا بچہ حافظ بنے گا. یا تعلیمی معیار کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی بچے کو بھی یا کسی بھی انسان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایجوکیشن یا تعلیم کو حاصل نہ کریں. آپ IAS بھی بنے، IPS بھی بنے، DM بھی بنے، SDM بھی بڑے بڑے عہدے بھی لیں، مگر سب سے پہلے اپنا جو اسلام ہے اس کو سیکھیں. ہم لگاتار مدرسوں کو دکھا رہا ہے کہ مدرسے ماڈرن تعلیم بھی دے رہا ہے. مدرسے کا نام ہے فیض ہیرا مدرسے کا نام ہے. ایک اور بات بتاؤں، یہ پروگرام جو کور کر رہا مدرسوں کے، اس کی وجہ یہی ہے جب سے غازی آباد میں 3 بچیوں نے سوسائڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ تھی ماں باپ کی ان پر توجہ نہ دینا. بچوں نے سوسائڈ کری، پورا ہندوستان اس سے ہل گیا اور مدرسے الرٹ ہوئے. جو والدین بچوں کو مدرسے بھیجنے میں گھبراتے تھے، آج انہوں نے سوچا کہ ایک موبائل جو ہے یہ آفت بن چکا ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بچوں کو جو ہے ہمیں مدرسے میں بھیجنا ہوگا، کیونکہ مدرسے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک خاص ریکویسٹ اپنے تمام ناظرین سے، تمام اپنے دیکھنے والوں سے، اسکرین پہ جو ایک بار کوڈ آ رہا ہے، پلیز آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ پیسے دیں، کیونکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ لگے گا. یہاں بچوں کے مستقبل کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کی بھی تیاری چل رہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی مدد کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورسل نیوز بیورو، دلی.